अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये मालूम करना है कि तमाम जीन्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं। अब आपके आरबीएच के बगैर 8 से 10 जीन्स हैं, अब वो कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो वो चीज़ मालूम करने के लिए आज हम पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। और अगर हमने जीनोम एनालिसिस करना है तो उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि हर जीन का फंक्शन क्या है। क्या कोई ऐसी टेक्निक है, क्या ऐसा कोई मेथड है जिसके थ्रू हम इन सिलिको मतलब है कि विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट इन द लैब, जस्ट ऑन द कंप्यूटर, कैन वी स्टडी द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन विद ऑथेंटिसिटी। तो उसके लिए यस, देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम वेबसाइट, देयर आर सम डेटाबेसेस where the people they normally send their data after they actually study the gene expression of their plants. ठीक है, तो उस before going into the detail of that website, first of all I will tell you what is a gene expression. So many of the people they know about the gene expression. You know, the gene expression is the process by which instructions in our DNA are converted into a functional product, such as a protein. Everyone, as you know, gene is a part of the body. Is a gene that is located on the chromosomes. How we can tell that this gene is expressed? When it forms a messenger RNA, when it synthesizes a messenger RNA. Otherwise, if there is no messenger RNA of that specific gene, it means the gene is not expressed. ठीक है? So, and after the messenger RNA, this messenger RNA travel towards the cytoplasm where they synthesize a protein with the help of ribosomes, transfer RNA, and some other molecules. So first level of gene expression is the synthesis of messenger RNA, and second level of gene expression is the synthesis of protein, and the third level of gene expression is that when this protein they actually work, they maybe act as enzyme, they may be converted to enzyme, or they may take part in some other chemical reactions, or they may be the part of some chemical reactions, or the part of some structural part of the DNA of the cell, like in cell membrane, or other organelles, the part of some other organelles. But the first level of gene expression is the synthesis of messenger RNA. So how we can how we can study that whether the gene is expressed or not. So we will discuss about that. When the information stored in our DNA is converted into instructions for making protein or molecule, I have already told you that this is the gene expression. Gene expression is actually a very tightly regulated process. As I already told you that gene expression is controlled by transcription factors in response to specific stimuli or the environmental changes when they take place. As I told you that the gene is if the gene is the gene expression in root and shoot is different. Why? Because the genes that are required for the synthesis of roots are different, and the root and the genes that help in the xylem and phloem biosynthesis and in stem is different, and they are differently regulated. And similarly, the genes that are responsible for flower bud initiation, that are different. If the flower bud initiation gene is also expressed in the root, then there will be a flower in the root, and that is not normally possible because the gene expression is highly and tightly regulated process. There are some switches that are present on the present in the nucleus that help in to control the expression of the gene. These switches are
Normally these switches are transcription factors. Similarly, if there is there is during the low light condition, that as I told you that during the light the plants they go into the process that is known as what is that known as, when the plant they grow under low light condition. Can anyone tell me what this condition is known as when the plant is grown under low light condition? Etiolation. क्या कहते हैं? It's a etiolation. When it means that there are some genes that are expressed during that process and that convert the plant into an etiolated one, which if the plant is not etiolated, then the plant will die. So the gene expression is very important to control the expression of the gene that is tightly regulated by the different transcription factors and environmental stimulus. So and the next question is, what is a transcription? As I have told you that two are the main factors that are involved in making a protein's transcription and translation. What is a transcription? जी बच्चों, what is a transcription? नूरुस्समा बताएगी what is a transcription. Hello, are you there? सर mRNA का बनना. mRNA का बनना, ठीक हो गया. So transcription is when the DNA is copied to form a messenger RNA. ठीक है? And this is carried out by enzyme called RNA polymerase, which uses available bases from the nucleus. So RNA, I have already told you that in RNA there is a uracil instead of thymine, and in this process we will study about the messenger RNA. First of all, we will study the messenger RNA. Then the translation. After the messenger RNA has carried the transcribed messages from the DNA to making protein. The message carried out from messenger RNA is carried by the anticodon that are present in the. I have already told you that many times. There are 20 different types of amino acids, and so now I will tell you how we can study the expression of the gene. अब हम ये सबसे पहले फर्स्ट लेवल ऑफ द एक्सप्रेशन जीन कैसे मालूम करेंगे? जी बच्चे, कैसे हम मैसेंजर आरएनए को स्टडी कर सकते हैं? अगर हम मैसेंजर आरएनए को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होता है. तो हम मैसेंजर आरएनए को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? जी आएगा, मुझे लगता है आपके अलावा किसी को नहीं आता, कोई बोलता ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं करता. फिर कहते हैं सर हमारे नंबर नहीं आते. जी बच्चे, जी एक्सप्रेशन कैसे स्टडी कर सकते हैं? इसकी प्रोसेसिंग करते हैं. हैं? सर उसके 4 प्रोसेसेस हैं. 4 क्या है? स्टेप्स वगैरह. सबसे पहले ज़रा अगर आपने किसी भी सेल का या किसी भी पार्ट का जीन एक्सप्रेशन स्टडी करना है, सबसे पहले हमें उस पर का लीफ है, लीफ के अंदर हमें कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वहां से मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? स्टडी कर सकते हैं. हेलो जी सर. क्या क्या करना पड़ेगा? जब पीसीआर से कर सकते हैं. नहीं, पीसीआर तो बाद में लगाएंगे ना. जी सर, वो पहले उसको आइसोलेट करेंगे मैसेंजर आरएनए को. एग्जैक्टली पहले हम क्या करेंगे कि मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट करेंगे. उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है? आइसोलेट एमआरएनए.
अच्छा, अब mRNA को आइसोलेट जब कर लेते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए जो है ना, आरएनए का मॉलिक्यूल, तो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने क्या कहा कि मैसेंजर आरएनए बहुत जल्दी। टोटली 2 सवाल ने दीजिए, एक तो उसका क्या कह रही है? मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करने के बाद हम उसको ना कन्वर्ट कर देते हैं डीएनए में। कन्वर्ट दिस एमआरएनए इनटू डीएनए, और उस डीएनए को कहते हैं सीडीएनए। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री डीएनए। क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट आइसोलेट करते हैं मैसेंजर आरएनए को। उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्राइजोल बेस्ड एक मेथड है जिसके थ्रू हम वो, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल भेज देता हूँ कि कैसे हम आइसोलेट करते हैं एमआरएनए को, वो आपने प्रैक्टिकल की नोटबुक में लिख देना है। फिर आपने उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एमआरएनए को डीएनए के अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली देयर आर सम एंजाइम जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि मैसेंजर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, जब डीएनए बन जाता है, डीएनए इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? is a stable molecule that is normally not degraded even if you store this DNA for many years। ठीक है, तो इसलिए डीएनए के ऊपर काम करना इजी है। फर्ज किया शुरू में, अगर अब हम क्या करते हैं कि उस डीएनए के मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट हुए होते हैं मैसेंजर आरएनए से, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है मैसेंजर आरएनए की। उसके अंदर सिर्फ यूरासिल की जगह थाइमिन होती है, लेकिन हर चीज ये वही होती है। फिर हम उस डीएनए के मॉलिक्यूल को सीक्वेंस करवा लेते हैं, और आजकल बड़ा अच्छा तरीका है जिसे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिसके थ्रू हम इसको सीक्वेंसिंग करवा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एनजीएस। और तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो है वो मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बात की समझ आ गई? और फिर वो सारे का सारा जो डाटा है, पर किया आप में से कोई एक स्टूडेंट है जो कि टोमेटो के हीट स्ट्रेस के ऊपर काम कर रहा है। किसके ऊपर काम कर रहा है? टोमेटो की हीट स्ट्रेस के ऊपर। अच्छा, अब जिले फिर क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर? अब जिले ने क्या किया कि एक पौधा, एक टोमेटो को दिया स्ट्रेस दिया हीट का, एक को नहीं दिया। अब ये क्या करना चाह रही है कि कौन से जीन है जो हीट स्ट्रेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। अब ये क्या करेगी कि दोनों के लीफ लेगी, जिसको हीट स्ट्रेस दिया है और जिसको हीट स्ट्रेस नहीं दिया। अब उन दोनों को मैसेंजर आरएनए अलग अलग आइसोलेट करेगी, दोनों को अलग अलग डीएनए में कन्वर्ट करेगी। फिर उन सारे मैसेंजर आरएनए जो उस टाइम एक्सप्रेस हुए हैं उनको ये सीक्वेंस करवा लेगी। जब सीक्वेंस करवा लेगी तो इसको पता चल जाएगा जो दो सिमिलर जीन एक्सप्रेस हुए होंगे वो तो ये स्टार्ट कर देगी। जो डिफरेंट होंगे दोनों सैंपल के अंदर, इट मींस दैट आर द जीन दैट आर normally expressed during heat stress. We can say that these genes are responsible for heat stress. They help to mitigate the। अच्छा, अब इस सारे जीन एक्सप्रेशन का जो डाटा है ना, उसको उसके लिए डिफरेंट यूनिट है। तो वो यूनिट है जो नॉर्मली इसमें डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपको सिर्फ ये बता दूं इसके 3-4 यूनिट है। एक को कहते हैं टीपीएम, ट्रांसक्रिप्ट पर मिलियन, आरपीकेएम। ये इन दोनों में से कोई भी यूनिट आए, अब हम इंटरनेट पे जाएंगे, क्या जिले हम इसके आप आरबीओएच पे काम कर रही है, एनपीआर मान के आपका इतना डिफरेंट जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट के ऊपर काम कर रहे हैं।
अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस सारे जीन के जो ऑलरेडी लोगों ने एक्सप्रेस हुए हैं और फिर उन्होंने डेटाबेस के अंदर सबमिट कराया होता अपना डाटा, आप वो डाटा आइसोलेट करोगे। क्या करोगे कि वो डाटा लोगे और उस डाटे को फिर आप यूज करोगे अपने यूज करेंगे टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ योर जीन, जो कि आपका जीन है, जिस जीन के ऊपर आप काम कर रहे हो। मेरी बात की यहां तक समझ आई है कि नहीं? आ गया सर। हम क्या करेंगे कि ये काम, ये जो मैंने कहा ना आइसोलेट प्रोसीजर आ रहा है, ये उस बंदे ने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको कन्वर्ट भी किया हुआ है और उसको डीएनए को सीक्वेंस भी करवाया हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से वो डाटा भी जनरेट किया हुआ है। उसको पता है कि लीफ के अंदर कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है अंडर ड्राउट एंड शार्ट स्ट्रेस या किसी भी स्ट्रेस के दौरान। लेकिन इसने अपने जीन जो डिफरेंट थे वो इसने पब्लिश कर दिया डाटा, लेकिन जो नॉर्मल एक्सप्रेस हो रहे थे दोनों के अंदर वो डाटा उसने कहीं पब्लिश नहीं किया। वो डाटा क्या किया उसने, एक एनसीबीआई एक वेबसाइट है उसकी जियो, एनसीबीआई जियो जीन एक्सप्रेशन ऑमनीबस, मैं वहां पर लेके जाता हूं आप लोगों को, वहां उसने उसको सबमिट करवा दिया। अब आयजा इसके ऊपर काम कर रही थी प्लम के ऊपर, इसने देखा कि अच्छा प्लम के ऊपर ऑलरेडी इस बंदे ने काम किया हुआ है, लेकिन इसने मेरे जीन के ऊपर काम नहीं किया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा जीन एक्सप्रेशन नॉर्मल कंडीशन में हो रहा हो। तो फिर आयजा को ये पता चल जाएगा कि अगर तो मेरा जीन वहां नॉर्मल एक्सप्रेशन के अंदर है, लीफ के अंदर या हीट के स्ट्रेस के दौरान भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो और नॉर्मल के अंदर कम है और हीट स्ट्रेस के दौरान ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो देन शी विल से दैट this gene could be used against heat stress. Plant may use this gene whether ये जीन हीट स्ट्रेस के दौरान एज ए, अब दो तरीके से हो सकता है इसका रोल। अब ये बताएं कि अगर तो आपका जीन हीट स्ट्रेस के दौरान एक्सप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? सर रिपीट करें बात। मैंने ये कहा है कि अगर आपका जीन हीट स्ट्रेस के दौरान प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? जी आयजा, अगर आपका जीन, हमने प्लम को हमने हीट स्ट्रेस दी और हीट स्ट्रेस के दौरान हमने ये इसका मैसेंजर आने आइसोलेट किया, उसको डीएनए में कन्वर्ट किया, फिर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से हमें ये मालूम हो गया कि कितना जीन एक्सप्रेस हुआ है। तो अगर आपका जो जीन जिसके ऊपर आप काम कर रही है, इफ यू फाइंड दैट जीन इन दैट स्पेसिफिक डाटा सेट that you generated during heat stress, what does it mean? Can anyone answer that? सर यूं हो सकता है कि हीट स्टिमुलस हो उस जीन को एक्टिव करने के लिए। दोबारा बताना बच्चे। सर हीट स्टिमुलस हो जीन के फंक्शनिंग के लिए। Okay, that's great. It means this is a great कि उस जीन को एक्सप्रेस होने के लिए हीट का स्टिमुलस चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा आंसर था, ठीक हो गया। अब दूसरा इसका आंसर क्या है कि इसका फंक्शन क्या होगा? जी फायदा, what will be the function of that gene? सर उसका यही फंक्शन हो सकता है कि उसने प्लांट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस हीट को एडजस्ट करना है। ओके, अच्छा ये भी बात आपकी, हीट से उस पौधे को बचाना, इट मींस दैट। जी सर, बचाना या जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट है हीट की डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उतनी हीट लेना और बाकी को खत्म करना। एग्जैक्टली ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इसका नेगेटिव रोल भी हो सकता है कि ये जीन हीट के दौरान एक्सप्रेस होता हो और पौधे को ज्यादा डिस्टर्ब करता हो।
ठीक है, या पौधे को बचाता हो, दोनों फंक्शन हो सकते हैं इसके, या तो पौधे को हीट से बचाता हो या हीट के दौरान ये जीन प्रोड्यूस हो रहा है और उससे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है पौधे के ऊपर, ये बात हो सकती है। जी सर, ये भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह अगर ये जो लोग पैथोजन के ऊपर काम कर रहे हैं, ये जो कौन कौन कर रहा है NPR 1 पे? सर हम और हफ्सा। अच्छा, आप आयशा और आमना, आप लोगों ने ना एक डाटा जनरेट किया, आपने प्लांट को स्ट्रेस दिया किसी भी पैथोजन का, ठीक है, आपने क्या किया कि एक पैथोजन का स्ट्रेस दिया, जब आपने स्ट्रेस दिया तो आपका जीन जो है एक्सप्रेस हुआ और पौधा जो है, अगर तो स्ट्रेस के दौरान पौधा सरवाइव कर रहा है, अच्छा एक और पौधा है जिसको आपने स्ट्रेस दिया लेकिन पौधा सरवाइव नहीं कर रहा, उसके ऊपर डिजीज आ गई है और आपका जीन उस जगह एक्सप्रेस हो रहा है जहां स्ट्रेस दिया लेकिन पौधा सरवाइव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ योर जीन? जी सर, जीन का ही रोल है कि वो एक तो बंद बड़ी जल्दी कर देते उसको, बंद कर दिया आपने। आयजा सर जीन ये बताएं इसका सर, पॉसिबल। जैसे फाइजा ने बताया है कि जीन का ही रोल है वो स्टिमुलस को। चलो बंद हो जाती है बाद में। जी आमना, आप बताएं। जिले उमा, क्वेश्चन रिपीट करिएगा। एक जीन है जो एक पौधे के ऊपर हमने, एक पौधा है जिसके ऊपर हमने ना पैथोजन का अटैक करवाया, ठीक है, उसकी एक वैरायटी ऐसी है जिसके ऊपर हमने पैथोजन का अटैक करवाया तो पैथोजन की वजह से उसके ऊपर डिजीज आ गई, ठीक है, लेकिन दूसरा पौधा ऐसा था जिसके ऊपर हमने पैथोजन का अटैक करवाया लेकिन डिजीज नहीं आई, ठीक है, आप एक जीन के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि पौधे के अंदर उस वक्त एक्सप्रेस हो रहा है जब पौधे के ऊपर आप पैथोजन का अटैक करवाते हैं लेकिन डिजीज आ जाती है, लेकिन उस पौधे के अंदर एक दूसरा पौधा है जिसके ऊपर पैथोजन का अटैक करवाते हैं लेकिन डिजीज नहीं आती, नहीं हो रहा, डिजीज आ रही है, वहां एक्सप्रेस हो रहा है, तो आपके जीन का फंक्शन क्या होगा? मैं लिख के बताता हूं यार, क्यों आपको मेरी आवाज की समझ नहीं आती, क्या कहते हैं हम लोग? जिले में कितने चलेगी? Are you guys are here? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. आंसर बता, पागल है जो बोल रहे होते हैं इधर।
आपने ना वीडियो ऑन करके रखा करें अपना, मैं आज के बाद वीडियो सारे वीडियो अपनी ऑन करें। जी बच्चों वीडियो ऑन करें सारे अपने। कहाँ चले जाते हैं आप लोग यार, हम बोलते रहते हैं आप लोग यार, पागल नहीं लगता जी तो बंदा भी। जी फायदा इकबाल बताएं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएं। सर आपने यही पूछा था ना कि अगर पैथोजन का अटैक होता है तो फिर क्या होगा? हाँ सर पैथोजन का अगर अटैक होता है तो उसके अंदर जो जीन्स काम कर रहे हैं वो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। यही क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्वेश्चन ये पूछा था कि दो पौधे, एक पौधे को पैथोजन का अटैक करवाया वो बच गया, ठीक है, दूसरा पौधा है जिसको पैथोजन का अटैक करवाया लेकिन वो डेड हो गया, उसके ऊपर डिजीज आ गई, ठीक है। अब आप जिस जीन के ऊपर काम कर रहे हैं वो उस जगह एक्सप्रेस हो रहा है जहां पौधा के ऊपर डिजीज आ गई है, तो व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ दैट जीन? सर उसका यही फंक्शन होगा कि उसने पैथोजन से बचाना है उसको, डिफरेंट डिजीजेस से। मैंने कहा कि वो उस जगह एक्सप्रेस हुआ है जीन जहां भी यहां पर ये डिजीज आई है, उस जगह आपका जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ जहां पर रेजिस्टेंस है। व्हाट डज इट मीन? सर इसका मतलब ये हुआ फिर कि वो जीन अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। जी और कोई आंसर देगा इसका? नीरव हेलो। जी सर, जीन रिसेसिव हो सकता है वहां पर। इट मीन वो जीन जो है वो ससेप्टिबिलिटी को एनहांस भी कर सकता है। ससेप्टिबिलिटी किसे कहते यस हैं? सर रेजिस्टेंट होना, यानी ससेप्टिबिलिटी, यानी वो डिजीज अटैक कर सकती है उसके ऊपर। नहीं, अगर डिजीज अटैक की है उस जगह कोई जीन एक्सप्रेस हुआ है, इट मीन दिस जीन कुड हेल्प इन एनहांसिंग द डिजीज। यस सर। ठीक है, अगर हम उस जीन को म्यूटेट कर दें यस सर। फिर पौधे के ऊपर अटैक करवाएं, और अगर अब उस पौधे के ऊपर पैथोजन का अटैक करने से डिजीज नहीं आती तो उसको म्यूटेट ही रखेंगे फिर हम। इट मींस हमने जीन के फंक्शन को स्टडी किया कि ये जीन जो है वो पैथोजन के अगेंस्ट पौधों के अंदर पैथोजन को हेल्प कर रहा है टू कॉज डिजीज। मेरी बात की यानी समझ? सर इसका ये मतलब भी हुआ कि हम दोनों चीजें करके देखेंगे, उसको म्यूटेट करके भी और एक्सप्रेस करके कि इसमें पैथोजन अटैक आता है या नहीं। हाँ एग्जैक्टली, यही काम आप लोग कर रहे हो कि आप लोगों ने अब ये चेक करना है कि आपके किस जीन का क्या फंक्शन है, ठीक है, और वो कहाँ एक्सप्रेस होता है, कहाँ एक्सप्रेस होता है। उसके बाद जब हम ये पता चल जाएंगे फिर हम इसको म्यूटेट करके देखेंगे या उसको ओवर एक्सप्रेस करके देखेंगे, ठीक है। ये तो अगला काम है, लेकिन पहला काम ये है कि हमें पता चले कि टोटल जीन्स कितने हैं और वो कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होते हैं, या ऑलरेडी पब्लिश डाटा से हमें कुछ ना कुछ चीजें हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो जीन्स हैं ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर उस जीन को या तो ओवर एक्सप्रेस करवा के देखेंगे या फिर डाउन रेगुलेट करवा के। ये लैब का वर्क होगा। ये क्या होगा? लैब वर्क होगा। लैब वर्क होगा। अगर वो हमें लैब वर्क के दौरान हमें जिस तरह डिजीज वाला जो जीन है उसको जब हम म्यूटेट करते हैं और उससे पौधे के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है तो हम वो वैरायटी
हम एज ए कमर्शलाइज कर सकते हैं कि दिस वैरायटी के अंदर ये डिजीज का अटैक नहीं होता। by muting that gene. एग्जैक्टली मेरी बात की समझ आप भी जो आरएनए जीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले उस जीन एक्सप्रेशन को हमने स्टडी करना है, फिर हमें चेक करना है कि वो जीन कहाँ कहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं, फिर हमने ये देखना है कि इसके ऊपर पैथोजन का अटैक करवाएंगे, फिर हम देखेंगे कि अब इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है, फिर उसको म्यूटेट करके देखेंगे। क्रिस्पर कैस एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू फिर हमें अगर तो हमें ये पता चलता है कि ये जीन ओवर एक्सप्रेस ना अगर हम एक जीन को म्यूटेट कर दें, पॉसिबिलिटी है कि एक पौधा रेजिस्टेंट है और उसके अंदर एक जीन हमने देखा है वो एक्सप्रेस हो रहा है, फिर हम उस जीन को सुप्रेस करवा दें और फिर उसके अंदर डिजीज आ जाती है ज्यादा। Yes sir. This gene is helping in resistance. सर एक्सप्रेशन की भी तो 4 टाइप्स है ना जो हमने पढ़ी थी अलील्स के हिसाब से। हाँ वो भी है, तो जाहिर है वो सारी डिफरेंट टाइप्स है इसकी, तो लेकिन Yes, ये वही चीज सारी एक्सप्रेशन का भी हम देखेंगे और वो चीजें सारी हम स्टडी करेंगे।